کراچی کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور عوام کو خبردار کیا کہ وہ رمضان المبارک کے دوران احتیاط کریں۔ آج لاہور کے ڈاکٹرز میدان میں آئے اور جو انہوں نے باتیں کیں وہ چونکا دینے والی ہیں۔ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا تو وہ سن کر بھی پریشان ہو گئے۔ کیا ہونے والا ہے، علماء اکرام کی کیا ذمہ داری ہے، اور کیا اب بھی ہم احتیاط نہیں کریں گے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع اور آج کا سوال۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحبان کو بھی آن بورڈ لیں گے، ان سے پوچھیں گے بھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی لائیو ٹیلی تھون کی، تمام بڑے بڑے اینکرز موجود تھے، اور خاص جو تھی اس ٹیلی تھون کی اہمیت کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا، اور اس دعا میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، آخر کہاں تک سنبھالے، اور ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ وہ اکیلے ہی ایماندار ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا بڑا شکریہ کہ مجھے تو انہوں نے 22 کروڑ جھوٹوں میں شامل کر دیا اور عمران خان صاحب کو سچوں میں شامل کر دیا۔ انہیں شاید وہ حدیث کو فکرے نہیں یاد، حکمرانوں کی بات کر رہے ہو، نہیں حدیث کو فکرے یاد نہیں ہے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی نظر ایک حدیث کر دیتا ہوں۔ شاید آئینے میں چہرہ پاکستان قوم کا سب کا نظر ہے کہ ایک تو اعمالکم اموالکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ تب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تم سے خوش ہے اور اللہ تم سے ناراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تم پر ایسے حاکم مسلط کرے گا جیسے انہوں نے عمران خان کا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تم برے ہوگے تمہیں ایسے کرے گا کہ تمہیں تمہارے عزت داروں کو ذلیل کرے گا اور تمہیں وہ اپنا سختی میں رکھے گا۔ تو یا تو یہ طے کر لیں کہ 22 کروڑ قوم جھوٹی ہے اور اس کے اوپر ایک سچا اللہ نے اپنی سنت بدل کے نافذ کر دیا ہے، اور یا یہ ثابت کر دیں کہ 22 کروڑ بھی سچے ہیں، ٹھیک؟ ایک بات بہرحال اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب کو عزت دے، تقدیر دے، ان کی بڑی بنتا ہے، سب کچھ ہے، چیز ہے۔ انہوں نے دعا بھی بڑی رکت امیز کی ہے، رکت امیز کی ہے، سب کچھ ہے۔ 55 کروڑ روپیہ ان کو ملا ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، الخدمت کی میں ہر اس کو نکلتا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے، عید اپنا عید رمضان سے پہلے زکوٰۃ، وہ جو الخدمت کی ہر سال نکلتا ہوں میں، 55 کروڑ سے زیادہ اکٹھا کر کے لاتا ہوں۔ 3.7 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ تو اوور آل ہے، میں ویسے کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں۔ بہرحال اینی ہو، خان صاحب کو اپنے اینی ہو، لیکن کل سے میں تکلیف میں ہوں، شدید تکلیف میں ہوں ہر معاملے کے اندر، اور اس مسئلے میں تکلیف میں ہوں کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ عثمان صاحب، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو خدا نہ خواستہ یا مجھے کینسر ہے تو کہے کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم کل کو میرے پاس نہ آ جانا، یا تم یہ کرو گے تو تم یہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات آپ اسی کی مانیں گے، گھر میں کسی اور کی نہیں مانو گے۔ صحیح بات۔ کوئی ماں جو ہے نا، کوئی ماں، کوئی باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ جو یہ کہے کہ بیٹے کا میں علاج نہیں کراتا ہوں، پہلے میں یہ بندوبست کر لوں کہ اس کو کھانے کا بندوبست، رات کو کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ یعنی آپ نے پاکستان کی ایک پوری کی پوری کمیونٹی کی ایڈوائس، یہی علماء ہمارے کر رہے ہیں۔ ڈائبٹیز ہوتی ہے، کس کے فتوے پہ روزہ نہیں رکھا جاتا؟ علماء کا، ڈاکٹر کے بھی۔ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب دیتے ہیں، نہ مفتی منیب الرحمان دیتے ہیں، نہ سامنے سعید دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھو، اور آپ اس کی بنیاد پہ فتویٰ دیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس کی بنیاد۔ اس وقت ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اوور آل یہ سچویشن ہے، تراویح کم از کم یہ اس کو ریسٹرکٹ کر لو، اور سب آپ ان کو اپنی اوقات، کل ہم نے مدنی کو بلایا تھا، ہم نے خاص طور پہ میں کہتا خود تالے لگانے چاہیے اس وقت جا کے، اس لیے کہ یہ گیم ہے بہت بڑی، میں بتا رہا ہوں ان کو، اور یہ گیم ایک سیکولر طبقہ کھیل رہا ہے کہ کل کو اگر کچھ بڑھے، آپ آج تک اپنے تبلیغی جماعت والوں کا داغ دھوک چکے ہو۔ دیکھیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، ظاہرین کا داغ تو دھل جاتا ہے، وہ مجھے پتا ہے کیوں دھلتا ہے، اور پورے پاکستان کے میڈیا کو پتا ہے کہ کیوں دھلتا ہے، وہاں کوئی بات نہیں کرے گا۔ لال شہباز قلندر سے جا کر اگر لے تب بھی کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک، لیکن یہاں آپ کو وہ
इमेज बनेगा, इसलिए खुद ताले लगाओ को 5 से बंदे नहीं होंगे, हम नहीं बढ़ाते, क्योंकि इसलिए कि हुकूमत ने हमें कह दिया हम बंद कर देंगे। एक तो ये। अब आते हैं अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स, उसके ऊपर हमारे शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मुराद अली शाह के कहने पे आपने सियासी प्रेस डॉक्टर, अब शहबाज गिल का वो दिखाएं जी, हमें जरा सुनाएं भी अगर उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद हम शहबाज गिल साहब से आज पूछेंगे भी कि जनाब वो तो मुराद अली शाह साहब ने करा दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने कराई? इस सिंध से एक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध गवर्नमेंट पहले भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करती रही है, यहां मानती थी कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमें खोलनी चाहिए, और वापस जाके सिंध में बिल्कुल जब डिसीजन होता था और बाद में उसके अपोजिट बयान दिए जाते थे। अब मैं ये समझता हूं, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये बुनियादी तौर पर यहां पर सियासत कर रहे हैं, और इनका पर्पस मतमा नजर ये नहीं है कि अवाम की बेहतरी किसमें है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये जानते बूझते कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता एक ऐसा मुल्क जिसके 24.9% लोग गुर्बत की लकीर के बिल्कुल नीचे हैं, वो 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन आप रखेंगे तो लोग भूखों मर जाएंगे। इनको पता ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बार बार सख्त तरीन लॉकडाउन क्यों करते हैं? एक तो ये चाहते हैं कि इस पर सियासत करें, और दूसरा ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के होते हुए इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाए और हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल सत्यानाश हो जाए और बाद में रीस्टार्ट ना हो नहीं, तो आप डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शक की नजर से देख रहे हैं? गवर्नमेंट चेंज करने के लिए डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप शक की नजर से देख रहा हूं जी, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के लिए नहीं है। सब डॉक्टर्स की उनकी ट्रेनिंग किसी और काम के लिए, पॉलिसी मेकर्स और लोग हैं, और जो मेकर्स हैं उन्होंने तमाम लोगों को कंसल्ट करके ये पॉलिसी बनाई है। ये ऐसे ही है जैसे एक कोई प्रोफेशन के लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं सब डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूं, पहली बात ये है, ये चंद डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर्स का काम हॉस्पिटल्स के अंदर है, डॉक्टर्स का काम मरीजों की देखभाल है, डॉक्टर्स का काम हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना है। ये है गवर्नमेंट की वॉइस प्रोवाइड नहीं हो रही, वो है जी। और साहब शर्म आनी चाहिए, ये सीवी इसका मेरे पास पड़ा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है। तुम्हें किसने मेडिकल एडवाइस का काबिल बनाया हुआ है? तुम्हारा लोकल स्टैंडाई क्या है? तुम एक मेडिकल डॉक्टर को मेडिसिन के मुकाबले में चैलेंज कर रहे हो। यानी ये कोरोना के साथ आप लड़ रहे हैं, आपको गली पे गाड़ियां चला रहे हैं। नहीं, यानी आप अंदाजा करें, या तो खान साहब की थपकी है या फिर खान साहब का किसी पर कंट्रोल नहीं है। यानी आप मुझे ये बताइए कि मेडिकल इसके मुकाबले में आप कह रहे थे डॉक्टर फरदौस शाह कल बुलाएं, फरदौस शाह बोले ना, वो मेडिकल डॉक्टर है ना, ये भी डॉक्टर ये एमपीए का डॉक्टर है। अच्छा, और 24% फला। ओ भाई, तुम लोगों की शक्लें हमने देखी हुई हैं। मैं वहां पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में घुमा हूं, तुम लोगों के तुम्हारे सीवी पढ़ के उठा के देखें। अच्छा, तुम्हारी औकात क्या है इस पाकिस्तान के अंदर? सिंध के डॉक्टरों के हवाले से जो बात कही कि जी वो पीछे पीपल्स पार्टी के नून लीग, जी आप बताएं जरा। अब पंजाब में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर अशरफ निजामी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और साथ उन्होंने बाकी डॉक्टरों के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की है, वो पहले सुन लें फिर उस पर बात करें। कि इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो फैसले हुकूमत कर रही है, हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। कि खुदारा वो तजर्बा ना कीजिएगा जो दुनिया के अंदर वो तजर्बे हो चुके हैं और पाकिस्तान को आप नई तजर्बागाह के अंदर बना रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत जो हैं रिप्रेजेंटेटिव टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, उन्होंने खुद ये फरमाया अपनी ब्रीफिंग के अंदर जो कल की है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अहम कोई अच्छी चीज के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए कि द थिंग्स कैन गो वर्सन इन पाकिस्तान। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ था वो एहतमाम हमने यही अपील करने के लिए किया आपकी वसात से कि खुदारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें, उसकी सफबंदी ना कर सकें। कोई ना आकबत अंदेशे ना फेल जो होगा हमें किसी जगह का नहीं छोड़ेगा। और फिर जो यूरोप, जो इटली के अंदर, जो स्पेन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम इस मुल्क की गलियों में और इस मुल्क के अस्पतालों के अंदर वो देखने के लिए फिर ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए। जो लॉकडाउन है, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इट कंपल्सरी।
जी, और ये हमें साहब, उस अशरफ इम्तिहान में निजामी डालना है। साहब। ये डॉक्टर्स हैं, कहते हैं कोरोना को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ले रहे हैं। शहबाज गिल साहब, अमेरिका की फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। जुल्फी बुखारी साहब, लंदन की फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। अभी हम एक लंदन के डॉक्टर को लेंगे, आपको अंदाजा नहीं कि वहां लोग कैसे चीख रहे हैं। आपकी वजह से अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों पे मौतें पहुंची, खुदा की कसम उठा करता हूं, लोग आपके कपड़े फाड़ देंगे। नहीं, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, अगर 15 दिन का लॉकडाउन तुम्हें अंदाजा नहीं, 15 दिन का लॉकडाउन सख्त किया होता तो मिसालें मौजूद है यार। और फिर आप नहीं जा, मसला पता है क्या है, इन लोगों को पाकिस्तान के मिजाज का नहीं पता। पाकिस्तान में आपने सिर्फ एक एहतियात करके अनाउंस कर दिया ना कि जनाब आप मोटरसाइकिल पे ना निकलें, आपकी बड़ा शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बड़े अच्छे शहरी हैं, पाकिस्तान का ख्याल रखें, वो खुदा मोटरसाइकिल पर 4 बंदे और बैठाएंगे, निकलेगा। पाकिस्तान के मिजाज, हर मुल्क के मिजाज के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। बिल्कुल सही बात। खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग आ गए हुए हैं कि जिन्होंने जिंदगी के अंदर यूके में, लंदन में बैठ के केस स्टडी मेथड पढ़े हुए। लेकिन वो तो कहते हैं कि सारे फैसले इत्तेफाक राय से किए जा रहे हैं, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल बना हुआ है, हर चीज। अगर नेशनल कमांड का कंट्रोल लगा हुआ है तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को क्यों चीख रहे हैं? मुझे ये बताइए। वो तो ये कह रहे हैं कि जो 20 नुकात बने वो डॉक्टर्स के मशवरे से बने। उस्मान साहब देखें, पाकिस्तान में इतने बंदे पीटीआई के शिकार हुए हैं कोरोना के जितने डॉक्टर हुए हैं, इतने बंदे नून लीग के शिकार हुए हैं जितने डॉक्टर्स हुए हैं, इतने बंदे पीपीपी के शिकार हुए जितने डॉक्टर्स हुए हैं, इतने बंदे मीडिया के शिकार हुए जितने डॉक्टर्स हुए हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई तुम पागल हो, तुम्हें आप जिस हुकूमत को यही ना पता हो कि उसके पास फूड किटी कितनी है और कितनी देर तक वो सरवाइव कर सकते हैं और कब तक वो लोगों को दे सकते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास इतनी भी प्लानिंग मौजूद नहीं कि आप कितने अरसे तक लोगों को घर में बैठा के खाना खिला सकते हैं। कंसिडर इट जेल, पूरे पाकिस्तान की जेल। और सबसे बड़ी बात है उस्मान साहब, पाकिस्तान के अंदर 100% लोगों को खाना आपने नहीं खिलाना। आपने मियां मनशा के घर खाना भेजना है, सही है, आपने मेरे घर खाना भेजना, आपने इसके घर भेजना है, आपने शहबाज गिल के घर तो खाना भेजना होगा, जो उसने भेजता होगा, मुस्तकिल जाता होगा, लेकिन इज्जतदार लोगों के घर खाना नहीं जाता। ये तबसरे करते जा रहे हैं बैठ के, खड़े होके। आपकी कोई एक, मुझे बताए, शहबाज गिल, मैं इसलिए कह रहा हूं, शहबाज गिल की मेडिकल के मामले के अंदर तबसरा करने की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, ये पूरे मुल्क को गुमराह कर रहा है। चलें जी नाज़रीन, अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे, हम डॉक्टर साहबान से भी बात करेंगे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और लंदन से एक डॉक्टर साहब से बात करेंगे जो खुद कोरोना का शिकार हुए, उन्होंने शिकस्त भी दी, और वो आप लोगों को क्या एडवाइस करने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।